If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So in the last lecture, I had taught you some new concepts, that was similarity and right angle triangle, and the second one was theorem of geometric mean. So the questions based on these concepts we'll be completing today. So see, your question number 2 of practice set 2.1 says that, now look into your textbook. The question says, in the figure, angle MNP is equals to 90 degree, segment NQ is perpendicular to segment MP, MQ is equals to 9, QP is equals to 4, find NQ. Now diagram देख के आप लोग को समझ में आना चाहिए that what are the values given to us. Now if you have seen your textbooks, the values aren't written in the diagram itself, but I have mentioned the values here. Why? Because students geometry solve करते time always remember that your answer is hidden somewhere in your figure. Okay, so you all should learn how to see your diagram and remove your answer orally. ऐसे बहुत questions होते हैं geometry में where you can directly solve the answers. Okay, so that can save your time. उसके बाद steps आप लोग फटाफट लिख सकते हो once you have got the answer orally. So that is why I have written the values here. Now see, we have given MQ and हम लोग को QP भी given है. We have to find NQ. So the two theorems that we learned yesterday, that is the lecture before this, were similarity and right angle triangle, and the second one was theorem of geometric mean. अब यहाँ पे triangles की similarity की तो बात हो नहीं रही है, so that means we'll have to use theorem of geometric mean. Sorry. So see, theorem of geometric mean said what? That जो altitude यहाँ से निकल के, that is perpendicular से निकल के hypotenuse पे मिलता है, so the square of altitude is equal to the product of these two segments, that is MQ and QP. So you will say, since this will be your first step, okay? Since NQ is perpendicular to MP, now how do you know this? This is given, ठीक है, यहाँ पे mention किया है ना, so it will be given. Therefore, NQ square will be equal to MQ into QP. Okay? And the reason for this is theorem of geometric mean. So you have to write the reason. It will be theorem of geometric mean. Okay? This much is clear. Now, NQ square, keep this as it is. Okay? What is MQ? It is 9 and QP is 4. ठीक है, अब इसको as it is रखो. सी आई नो आप लोग बोलेंगे मैम हम लोग 9 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 9 4 इज 36, देन 36 का स्क्वायर रूट विल बी 6. करेक्ट. नाउ मैं आप लोग अभी यहाँ पे इजी नंबर्स है तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर आप लोग को पता है. समटाइम्स द नंबर इज बिगर, सो आप लोग को स्क्वायर नहीं मिलता है. सो व्हाट टू डू इज, अब इसको एज इट इज रखो. ये NQ का जो स्क्वायर है उसको RHS में ले लो. So this will be square root of 9 into 4. Okay. Now see, NQ is equals to, now what is square root of 9? It is 3. So 3 बाहर आया and square root of 4 is 2. So the answer is 6. Therefore NQ is equals to 6 units. You will write units. Okay. And that's it. That is your answer. ठीक है. ये समझा. यहाँ पे आप लोग 9 4 36 एंड 36 का स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते थे. आंसर तो सेम ही आ रहा है. बट दिस ट्रिक वर्क्स व्हेन यू हैव सम ग्रेटर नंबर्स हियर एंड उनको मल्टीप्लाई करने के बाद और बड़ा नंबर आ जाएगा. तो अगर आप उसको स्क्वायर रूट नहीं पता है, सो यू कैन ब्रेक द नंबर्स लाइक दिस एंड फाइंड दैट आंसर डायरेक्टली. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर था. सो नाउ लेट्स गो अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. Okay students, so now let us start with question number 3. So in question number 3, the given says angle QPR is 90 degree, QPR, PM is perpendicular to QR. अब अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ पे उन लोग ने 90 डिग्री यहाँ पे बनाया नहीं है, बट आप लोग को गिवन में दिया है दैट PM is perpendicular to QR. सो वो आप लोग ध्यान में रखो. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज PM is equals to 10, दिस इज 10 एंड QM is equals to 8. नाउ यू हैव टू फाइंड QR. अब आप लोग बोलेंगे मैम ऐसा तो कोई थ्योरम नहीं पढ़ा था. आई एग्री, बट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता था दैट जो आपका एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेगमेंट्स. सो PM स्क्वायर विल बी QM इंटू MR. करेक्ट. सो यहाँ पे हमें PM और QM पता है. अगर हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट द आंसर फॉर MR. करेक्ट. एंड देन वी कैन ऐड. नाउ QR इज व्हाट? QR इज QM प्लस MR. करेक्ट. QR is QM plus MR. So once we find MR, we can just add QM plus MR and we'll get the value for QR.
ओके, सो क्वेश्चंस आर सेम, आप लोग को जो थ्योरम्स गिवन है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ कुछ चीज़ें इधर उधर आएगी. जैसे समटाइम्स दे विल टेल टू फाइंड यू द एल्टीट्यूड, समटाइम्स दे विल टेल टू फाइंड यू वन ऑफ द सेगमेंट्स. अब इस क्वेश्चन में कैसे पूछा है, ये पूरे सेगमेंट का हम लोग को लेंथ पूछा है. So first we'll have to find this and then we'll add both of this. Okay, so try to learn the concept. Okay, so now see what we'll do. First of all, we'll apply theorem of geometric mean, but before that we'll write, since PM is perpendicular to QR, this is given. Okay, therefore by theorem of geometric mean आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यूजिंग थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. सो राइट बाय थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. नाउ सी दिस विल बी PM square is equals to QM into MR. Okay, so now PM is what, 10. So 10 square is equals to 8 into MR. We don't know MR. Then what is 10 square? It is 100. So we'll write 100 is equals to 8 into MR. Now divide this here. So 100 upon 8 is equals to MR. Okay, now see, this will be 4 2s are 4 2s are 8. This is 4 2s are 8. This is also 4 2s are 8. 2 remaining, so 4 5s are 20. So MR is equals to, now this is 2 upon 25, correct? So now we'll 12 2s is 24. So this will be 12.5. 2 1s are and this will be 12.5. अगर आप लोगों को कैंसिलेशन नहीं समझ में आए तो इधर देखो, सी इट इज 25/2, करेक्ट? सो 2 1s are, देन दिस इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक बचा है, डेसिमल डाला, सो इट विल बी 0. So 2 5s are 10. So the answer is 12.5. Okay. So MR is 12.5 units. But हमें MR नहीं ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना है, QR. So this was the first step. So in the second step you will write QR is equals to, पूरा QR क्या है, QM plus MR. So we'll write QM plus MR. Okay. So what is QM? It is 8 and MR हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया, which is 12.5. Now add this. So this will be 20. This is 12 plus 8 20 and this is 0.5. So 20.5. So QR will be 20.5 units. Okay. I hope the sum was clear to you all. Okay. यहाँ तक जो हम लोग ने लास्ट सम में किया वही करना था. We calculated MR. उसके बाद हमें QR ढूंढना था, so we just added QM and MR, so we got the answer for QR. So first of all, take a screenshot of this. Okay students, I hope this question is also clear to you all. Now question number 4, 5 and 6 we have already completed in the till the last lecture, I mean. So now let us start with question number 7. Okay students, so now let us start with question number 7. Now this is a very interesting question because question तो बहुत easy है, but here we will have to use 2 of the theorems that we have learned. डायग्राम देख के आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि दैट वी आर गोइंग टू यूज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एंड दैट इज करेक्ट बिकॉज हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है एंड दे हैव इवन गिवन अस एन एल्टीट्यूड. सो हम लोग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने वाले हैं, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. सो वी हैव टू फाइंड 3 थिंग्स हियर, EG, FD एंड EF. ओके, सो EG जो है वो हम लोग को थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से मिल जाएगा. हाउ वी विल फाइंड FD एंड EF दैट वी विल सी फर्दर. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो now you can see here that FG is perpendicular to ED. So ये जो first step जो है where we will calculate EG is similar to the 2 sums that we did earlier. Okay, so first of all we will solve that. So we will write FG perpendicular to ED and this is given to us. Okay, therefore by theorem of geometric mean, by theorem of geometric mean, FG square will be equal to DG into EG. Okay, DG into EG. G and EG is one and the same thing. So I've written EG since question में EG mention किया गया, ठीक है. So now what is FG? It is 12. So 12 square is equals to, now DG is 8.
into, now again here DG and GD is one and the same thing, okay, and EG हम लोग को ढूंढना है, so keep it as it is. Now 12 square is 144 which is equals to 8 into EG. Then now take this 8 here, so it will be 144 upon 8 is equals to EG. Okay, so now see, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, 8 1 जा, this will also be 8 1 जा 8, कितना रिमेनिंग है 6, so 64, just a second, this is 64, so it will be 8 8 जा 64, so 8, so EG will be 18 units. EG कितना हो जाएगा 18 units. ओके, नाउ सो हम लोग ने फर्स्ट थिंग ढूंढ लिया दैट वी हैव टू फाइंड EG. नाउ FD और EF कैसे ढूंढेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल है अग्री. अब इसके अंदर देखो यू ऑल हैव टू मोर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल DFE, सॉरी दिस इज D, सो ट्राइंगल DFG एंड ट्राइंगल FGE. तो वो अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी तो 90 डिग्री होगा. यू हैव लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंगल्स इन लीनियर पे, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी अगर ये सपोज एक लाइन है तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. क्यों? बिकॉज ये जो पूरा सम होता है इस पूरे एंगल का, इट इज़ 180 डिग्री. तो ये अगर 60 है तो फिर इस हिसाब से ये 120 हो जाएगा. तो उस तरीके से वी सॉल्व दिस. यू ऑल हैव लर्नड इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, सो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया. अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. वहाँ पे हमारे पास दो साइड्स गिवन है, दैट इज FG एंड GD. सो वी कैन कैलकुलेट FD यूजिंग विच थियोरम, पाइथागोरस थियोरम. करेक्ट. सो नाउ सी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैंने EG कैलकुलेट करके दे दिया है यूजिंग थियोरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अब इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थियोरम से FD फाइंड करेंगे, दैट आई एम डूइंग फॉर यू. सेम थिंग हमें ये वाले ट्राइंगल में EF फाइंड करने के लिए करना है, हमें EF भी फाइंड करना है. सो दैट थिंग विल बी फॉर होमवर्क. आई एम रिपीटिंग अगेन, ये क्वेश्चन में 3 थिंग्स हमें फाइंड करनी थी, EG, FD एंड EF. EG मैंने कर दिया है, FD आई एम डूइंग नाउ एंड EF विल बी फॉर होमवर्क. सो पे अटेंशन केयरफुली, हाउ एम आई फाइंडिंग FD, उसी तरीके से आप लोग को EF भी फाइंड करना है. ओके, सो नाउ सी, हियर आई राइट इन स्टेप नंबर 2, इन ट्राइंगल DGF. नो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके पास एक बड़ा डायग्राम है और अगर आप लोग के पास एक बड़ा डायग्राम है और अगर आप उससे उसमें से एक पार्ट बाहर निकाल रहे हो, सो ऑलवेज मेक अ हैबिट कि आप वो ट्राइंगल को बाहर ले लो. अभी यहाँ पे हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल, इफ यू आर टेकिंग रेक्टेंगल सो रेक्टेंगल, उस तरीके से. सो दिस इज अ राइट एंगल GF एंड D. नाउ दिस विल बी 12 एंड दिस इज 8. तो हमें FD कैलकुलेट करना. सो राइट बाय पाइथागोरस थियोरम. यहाँ पे आई एम यूजिंग शॉर्टकट, मेक श्योर आप लोग पूरा लिखे बाय पाइथागोरस थियोरम. ओके, सो दिस विल बी हाइपोटेनस. यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है हमारा FD. सो FD स्क्वायर विल बी इक्वल टू FG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर. ओके, सो FD हमें पता नहीं है, सो कीप दैट एज इट इज. इट विल बी इक्वल टू FG. व्हाट इज FG? 12. सो 12 स्क्वायर plus GD is 8 square. Okay, now again this will be as it is. This is 144 plus this is 64. Okay, so FD square will be 8, this will be 10, so 208. Okay, just a second, let us check. This is 12, so it will be 144 and 8 square is 64, so this will be 8. This will be 10, 1 carry, so this will be 208. Now FD will be what? हमें FD स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें FD कैलकुलेट करना है. सो FD will be स्क्वायर रूट ऑफ 208. ओके, अब देखो अगर आप लोग को डायरेक्टली स्क्वायर नहीं पता है, सो हम कैसे फाइंड करते हैं? 208 को बाहर लेते हैं, 2 1 जा 2, देन 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 13 जा, करेक्ट, 13 2 जा, या, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर. सो दिस विल बी एज इट इज. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 4 into 4, FD will be equal to 4 into 4 into 13. समझा? मैंने ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया, सो 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4 एंड दिस इज 13. अब यहाँ पे 4 2 बार है तो मैं उसको बाहर एक बार लिख सकती हूँ, करेक्ट. So FD will be 4
and this will be root 13. समझा? So FT is 4 root 13 units. FT will be 4 root 13 units. Okay, this much is clear. So first of all, take a screenshot of this sum. Okay students, I hope this question was clear to you all. So now let's move on to the next question. Okay students, so now let us start with question number 9. So question number 9 says, in the figure, M is the midpoint of QR, angle PRQ is equals to 90 degree. Prove that PQ square is equals to 4PM square minus 3PR square. Now mark this sum as important. ये सम बहुत ज़्यादा important है because ज्योमेट्री में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं. एंड पाइथागोरस थ्योरम में जो आप लोग का सेकेंड एक्सरसाइज है वो रिड्यूस हो गया है फ्रॉम द सिलेबस. सो इसलिए ये एक्सरसाइज से ही सारे क्वेश्चन आएंगे और प्रॉब्लम सेट से आएंगे. करेक्ट? तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ सी, गिवन में हम लोग को क्या गिवन दिया है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. इसका मतलब क्या है, आर एम और एम क्यू इक्वल है. ठीक है, अगर ये आर एम 5 सेंटीमीटर है तो एम क्यू भी 5 सेंटीमीटर. इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. देन द सेकेंड थिंग इज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ना हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर. ठीक है, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे वो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा. सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है. करेक्ट? तो आप लोग को जैसे ही 90 डिग्री दिखेगा आप लोग के दिमाग में क्लिक होगा दैट वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. ओके, बट द थिंग हियर इज वी हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स हियर. करेक्ट? द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल पी आर एम एंड द सेकेंड वन इज ट्रायंगल पी आर क्यू. सो हमें दोनों भी ट्रायंगल्स में अप्लाई करना पड़ेगा. वाई सो? बिकॉज सी, अपने प्रूफ दैट वाले पार्ट में देखो, सबसे हमारे एलएचएस में क्या है, पी क्यू स्क्वायर. तो हमें पी क्यू स्क्वायर तो लगेगा ही. एंड द सेकेंड थिंग वी हैव पी एम स्क्वायर. तो सेकेंड वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, पी एम स्क्वायर. सो इट मीन्स हमें दोनों भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप वी राइट इन ट्रायंगल पी आर एम. ट्रायंगल पी आर एम में पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर. ओके, नाउ गिव दिस. अब सबसे पहले इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, दिस विल बी पाइथागोरस थ्योरम. ऑल्सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. अब यहीं से आप लोग आर एम का स्क्वायर निकाल लो. ठीक है, वाई सो वो आप लोग को आगे समझेगा. अब ये देखो, आर एम का स्क्वायर क्या आएगा, ये पी आर को वहां भेजो, सो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एम स्क्वायर. ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे के रखो फिलहाल के लिए. नाउ कम टू सेकेंड ट्रायंगल. द सेकेंड ट्रायंगल विल बी ट्रायंगल पी आर क्यू. सो विल राइट इन ट्रायंगल पी आर क्यू, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर. ओके, एंड रीजन क्या आएगा, अगेन इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम. ओके, I hope this much is clear to you all. अब देखो, RQ is what? RQ is RM plus MQ. करेक्ट? ये ऐसे सम हम लोग ने बहुत बार किया. हमारे पास एक लाइन है बट वो वो किससे बना है, सो इट इज RM plus MQ. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सी मैं PR के कुछ वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट नहीं करूंगी. वाई सो? बिकॉज हम लोग को जो लाना है, जो हम लोग को प्रूफ करना है उस पर भी ध्यान दो. वहाँ पे हमें PR चाहिए. सो इट मीन्स पी आर को हम लोग कुछ ना कुछ तो यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमें 3 PR का टर्म लाना है ना, उसके लिए. सो नाउ कीप दैट एज इट इज. हमें आर क्यू नहीं चाहिए हमारे 2 प्रूफ में, तो अब हम उसका वैल्यू कुछ लगाएंगे सो दैट हमें जो टर्म्स चाहिए वो हमें आए. ठीक है, सो पी आर स्क्वायर प्लस, नाउ व्हाट इज आर क्यू? आर क्यू इज आर एम प्लस एम क्यू. सो यू विल राइट आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर. ओके, नाउ पी क्यू स्क्वायर is equals to PR square plus, now RM plus MQ the whole square. Now this sounds like A plus B the whole square. So the formula for A plus B the whole square is A square plus 2AB plus B square. Correct? ये सबको पता ही होगा. So यहाँ पे this will be RM square plus 2 RM into MQ plus MQ square. Correct? यहाँ तक समझा? Now see, what is PR square plus RM square? यहीं पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था. PR square plus RM square क्या है? PM square. करेक्ट? तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे PM square.
ठीक है, तो यू राइट हियर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम इंटू एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर. ओके, नाउ सी फर्दर. पी एम स्क्वायर मिला हम लोग को, अब हमें पी एम स्क्वायर भी चाहिए. अब पी आर की जगह पे नाउ सी व्हाट विल डू, आर एम और एम क्यू जो है वो सेम है, करेक्ट. हमें क्या बोला है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू. इसका मतलब अगर आर एम 5 सेंटीमीटर है तो एम क्यू भी 5 होगा, आर एम 10 है तो एम क्यू भी 10 होगा, करेक्ट. तो यहाँ पे मैं उसका कुछ सब्सटीट्यूशन कर सकती हूँ, करेक्ट. तब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस 2. अब ये आर एम की जगह पे मैं यहाँ पे एम क्यू लिख दूँ. ओके, एम क्यू, या फिर यहाँ पे एम क्यू के जगह पे आर एम लिखो. वाई सो वो आप लोग को आगे समझेगा, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे आर एम का वैल्यू कैलकुलेट किया है ना, तो इसके लिए यहाँ पे आर एम और एम क्यू के जगह पे वापस आर एम लिखो प्लस दिस विल बी अगेन आर एम स्क्वायर. ओके, सो नाउ दिस विल बी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस 2 आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो क्लियर होगा. फिर यहाँ पे हमने क्या किया, आर एम और एम क्यू जो है दोनों भी इक्वल आएंगे सिंस एन इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, वो हमें गिवन में था, करेक्ट. तो वहाँ पे मैंने एम क्यू की जगह पे आर एम सब्सटीट्यूट किया, देन हम लोग सिंपली आगे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं. आर एम इंटू आर एम इज आर एम स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग ने आर एम स्क्वायर एज इट इज लिखा है. नाउ पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, सो इट विल बी 3 आर एम स्क्वायर. अब आर एम का वैल्यू हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया है, पी एम माइनस पी आर. सो पी क्यू स्क्वायर, अब आ जाएगा आंसर, देखो पी एम स्क्वायर प्लस 3 बाहर रखो, यहाँ पे लिखो पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, करेक्ट. अब ये 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 पी एम स्क्वायर 4 पी एम स्क्वायर, and this will be minus 3 PR square, and that is your answer. So आप लोग नीचे लास्ट में लिख सकते हैं hence proved. ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था ना, so we will write hence proved. Okay, so I hope ये समझा होगा. थोड़ा लेंदी था एंड ट्रस्ट में मे भी हो सकता है आप लोग को फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आएगा. सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 3 to 4 times और उसके बाद ईजी लगेगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. Okay students, so your question number 9 was clear to you all. So now we are remaining with just one sum of this exercise, that is question number 10. So now let's go there. Okay students, so now let us start with the last question of practice set 2.1. Now this question is very easy and यहाँ पे मतलब ये exercise में हमारे पास 10 sums थे, तो मैंने 9 sums किए हैं, करेक्ट. मैंने आप लोग को ऑलमोस्ट सारे सम्स करके दिए. सो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी फॉर होमवर्क. सो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आप लोग को समझा देती हूँ. मैंने डायग्राम भी दे दिया है बिकॉज आप लोग की क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन था. सो वंस यू अंडरस्टैंड द डायग्राम द क्वेश्चन इज वेरी इजी. सो रीड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन यू द डायग्राम simultaneously and then you all can solve the question in homework. So the question says walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. So मतलब क्या बोला है, ये दोनों समझो AB और ED जो है वो बिल्डिंग का वॉल है. ठीक है, अब बिल्डिंग का वॉल ऐसे परपेंडिकुलर होता है, पता है ना, ग्राउंड को ऐसा टेढ़ा नहीं हो सकता. सो दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये जो है वो नीचे हमारा स्ट्रीट है, तो ये AB एक बिल्डिंग का वॉल है और ED जो है वो सेकेंड बिल्डिंग का वॉल है. अब AB जो है वो थोड़ा छोटा बिल्डिंग है और ED जो है थोड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इसके लिए उनके हाइट्स में डिफरेंस दिख रहा है. नाउ द सेकेंड थिंग सेज अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. तो मतलब ये जो AC जो है वो एक हमारा लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, तो उसको इस तरीके से रखा गया है स्ट्रीट पे कि उसका जो टॉप है वो हमारी AB जो बिल्डिंग है उसके 4 मीटर हाइट तक पहुंचता है, करेक्ट. और लैडर का लेंथ कितना है, इट इज 5.8. यहाँ पे ये शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड. दिस इज 5.8 मीटर्स. ओके, सो लैडर 5.8 मीटर्स का है, बट सामने जो बिल्डिंग है उसको वो मतलब कितने हाइट तक पहुंच रहे हैं उसके, सो 4 मीटर्स तक. उसकी नेक्स्ट थिंग क्या बोला है उसके बाद, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट
Its top touches the window of the other building at a height 4.2 मीटर। अब जब उसको दूसरी बिल्डिंग की तरफ टिल्ट करते हैं, टिल्ट मतलब झुकाया, तो वो उस तरीके से मतलब एंगल बना रहा था कि यहाँ पे जो है सेकेंड बिल्डिंग के 4.2 मीटर के हाइट तक पहुंच रहा था। फर्स्ट बिल्डिंग के 4 मीटर हाइट तक पहुंच रहा था, सेकेंड बिल्डिंग के 4.2 मीटर तक पहुंच रहा था। सो फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब आप लोग को स्ट्रीट कितना है उसका विड्थ ढूंढना है। मतलब सिंपली आप लोग को क्या ढूंढना है, BD ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले ये देखो, ये जो ट्राइंगल है बन रहा है यहाँ पे, ये लाइडर है हमारा, ये हमारा बिल्डिंग का वॉल है और ये हमारा स्ट्रीट का एक पार्ट है। तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो आप लोग को BC मिल जाएगा, करेक्ट। देन इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो CD मिल जाएगा। एंड उसके बाद BD कैसे मिलेगा? BC प्लस CD, करेक्ट। तो सम बहुत ईजी है, सिर्फ उसका डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट था। सो आई एक्सप्लेन्ड ऑल द डायग्राम। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये 5.8 ये 5.8 दोनों सेम क्यों है? बिकॉज लैडर का तो लेंथ नहीं चेंज होगा ना। अगर लैडर 5 मीटर का है तो 5 मीटर का ही रहेगा, 6 मीटर का है तो 6 मीटर का रहेगा, करेक्ट। वो उसको किस तरीके से झुकाया गया उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो सामने वाले वॉल के कितने हाइट तक पहुंच रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे वो 4 मीटर्स तक पहुंच रहा था और यहाँ पे 4.2 मीटर तक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ अप टिल योर, एंड ये क्वेश्चन को अभी ही कंप्लीट कर लेना आफ्टर यू कॉपी दिस डाउन टिल योर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वील बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम सेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम which will be taking 2 to 3 lectures. I'll try to complete it in 2 lectures at itself. Okay? बट जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, and do not forget to subscribe to the channel. Okay students, so that's it for this video. Thank you so much.